Hello children. So today I'm going to tell you the story of Ramayana, and the story will be in English. A little bit in English and a little bit in Hindi. Okay? So, once upon a time there was a king, a very powerful king of Ayodhya. His name was Dashrath. Dashrath had three wives. Three wives. पहले वन वाइफ नहीं, टू वाइफ्स, थ्री वाइफ्स, बहुत सारी वाइफ्स होती थी. सो ही हैड थ्री वाइफ्स, कौशल्या, कैकेयी and Sumitra. Now these three wives had four sons. Kaushalya's son name was Ram. Then three other brothers, Lakshman, Bharat and Shatrughan. Now all these four brothers were very thick friends. ये चारों एक दूसरे के को बहुत ज्यादा प्यार करते थे और एक दूसरे के संग खेलते भी थे. जैसे जैसे बड़े हुए तो it was time for the coronation. Coronation means now who's going to be the next king after Dashrath? So Ram was the eldest. So Ram was decided to be the king. But Kaikeyi did not want this. She wanted her own son Bharat to become the king. She knew that Bharat would never agree to this. So she sent Bharat to his maternal grandparents' house. उन्होंने भरत को नानी के घर भेज दिया और दशरथ के पास गई और बोली, आपने मुझे एक प्रॉमिस दी थी and I want that promise to be fulfilled today. आज आप भरत को किंग बनाओ और राम को 14 years के लिए वनवास भेज दो. Send him to exile. Dashrath was shocked. He said, how is this possible? He is the rightful heir to the throne. But Kaikeyi did not agree. She said, no, you have to keep your promise. And poor Dashrath, he had nothing else to do but to send Ram for exile. So he called Ram to him and said, बेटा, मैंने कैकेयी माँ को एक प्रॉमिस दिया था, अब वो प्रॉमिस मुझे पूरा करना पड़ेगा. So you will have to go to the jungle for 14 years. And Dashrath started crying. But Ram just smiled and he said, so what, Papa? It's okay. मैं जाऊंगा वनवास और भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो है ना इधर. Why are you worried? But Lakshman said, no dear brother, आप जा रहे हो तो मैं भी जाऊंगा आपके संग. Ram said, आपकी जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही चला जाऊंगा. But Lakshman did not listen. He said, no brother, I love you very much. मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं आपके संग संग जाऊंगा. सीता ने बोला, अरे मैं तो आपकी वाइफ हूँ, मैं भी चलूंगी आपके संग. So all three of them left Ayodhya for the jungles. Ram, Sita and Lakshman. So the three left for the jungles. जंगल में गए और जंगल में रहने लग गए. When Bharat came back from the palace of his grandparents, he looked for his brother. He said, राम भैया कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, सीता भाभी कहाँ है. When he was told about this news, he was very upset. He went to his mother Kaikeyi and said, Mama, what did you do? आपने क्या किया? आपने मेरे भाई को और मेरे भाभी को आपने वनवास भेज दिया.
ये बहुत गलत काम किया. पर Kekai said, Beta, I did it for you to become the king. Bharat said, I don't want to become the king. And he sat down on his horse and he galloped fast and he went to the jungles. And he told Ram, Ram, please come back. Ayodhya is rightfully yours. But Ram ne bola, Bharat bhai, mere Papa has made a promise and I cannot make him break his promise. Don't worry, you take my खड़ाउस, खड़ाऊ स्लीपर्स होते हैं, ओके. सो खड़ाऊ लेके जाओ और थ्रोन पे रख दो. आप यही समझना कि मैंने ही आप रूल किया है, पर रूल असली में आप करना. You take care of the people of Ayodhya and be a very, very good king. Bharat was very sad, but he had to obey his brother, and he went back to अयोध्या. फिर भरत ने खड़ाऊ को थ्रोन पे रखा एंड ही स्टार्टेड रूलिंग अयोध्या. इधर जंगल में राम, लक्ष्मण और सीता तीनों आराम से कुटिया में रहते थे. सीता यूज्ड टू कुक फूड, राम एंड लक्ष्मण यूज्ड टू हंट एंड गेट फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. सीता gave food to all the birds and animals. और वो जंगल के सारे जानवर उनके फ्रेंड्स बन गए. एक दिन वहां पे घूमते घूमते came a very beautiful girl. She was very beautiful indeed. Who was she? She was Surpanakha. Surpanakha, sister of Ravan. Ravan was the king of Lanka. And he was a very, very powerful king. So, Surpanakha came to Ram and she said, Ram, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो. So, शादी कर लेते हैं हम लोग. राम ने बोला, नहीं, I'm sorry because I already have a wife. And he called out for Sita. Sita, Sita. And Sita came out. So Ram said, why don't you ask Lakshman? I am already married to Sita. So Surpanakha called out to Lakshman. And she said, Lakshman, मेरे से दोस्ती करोगे? मेरे से शादी कर लो. तो लक्ष्मण ने बोला, नहीं, मैं नहीं कर सकता. मेरी वाइफ तो ऑलरेडी अयोध्या में है. सूर्पनखा को बहुत गुस्सा आ गया. ये बहुत बड़ी खराबी थी सूर्पनखा में. जब वो गुस्सा करती थी उसका फेस बहुत गंदा हो जाता था. हम सबका फेस गंदा हो जाता है जब हम एंग्री हो जाते हैं. सो वी शुड नेवर गेट एंग्री, नहीं तो हम भी सूर्पनखा की तरह अगली हो जाएंगे. देखो कैसे वो अगली हो गई. गुस्सा करा तो उसने कैसे हो गई. वो गुस्सा करते करते वो भागी और अपने ब्रदर रावण के पास गई. रावण को बोला उसने, भैया राम और लक्ष्मण ने मेरी इंसल्ट करी है. मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ बट उन्होंने मना कर दिया. रावण, उसको बहुत बुरा लगा. वो अपनी सिस्टर को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता था. तो उसने बोला, डोंट वरी सिस्टर, मैं देखता हूं कि वो क्यों नहीं शादी करना चाहता तुमसे. तो सूर्पनखा ने बोला, भैया उनकी ऑलरेडी वाइफ है और वाइफ है ना वो बहुत प्रिटी है. आप ऐसा करो, उसकी वाइफ को यहाँ ले आओ, फिर मेरी शादी राम के संग कर दो. तो रावण ने सोचा, हाँ ये आइडिया तो ठीक है, मैं सीता को यहाँ ले आता हूँ और तुम्हारी शादी राम के संग कर देता हूँ. So what did Ravan do? He thought of a plan. उन्होंने अपने एक कजिन ब्रदर को भेजा जो दूसरा फॉर्म बदल लिया. उन्होंने फॉर्म बदल लिया एक सुंदर से गोल्डन डियर का. Now Sita loved animals. एक दिन Sita was sitting and suddenly she saw a golden deer.
सो शी लाइक द डियर सो मच। उन्होंने डियर को ग्रीन ग्रीन ग्रास दी और उसको अपने पास बुलाया, पर वो तो भागने लग गया। तो उन्होंने राम को बुलाया और बोला, देखो तो वो डियर कितना सुंदर है, प्लीज उसको मेरे लिए पकड़ के लेकर आओ। तो राम ने बोला, ओके, मैं जाता हूँ, अभी उसको पकड़ के लेके आता हूँ। और राम चल गए डियर के पीछे 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 पीछे। अब थोड़ी देर में क्या हुआ, एक आवाज आई जोर से, लक्ष्मण लक्ष्मण। तो सीता तो बहुत डर गई। उन्होंने बोला, लक्ष्मण आप जाओ, जल्दी जल्दी जाओ, आपके भाई राम बुला रहे हैं आपको। तो लक्ष्मण बोले, नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। सीता बोली, नहीं, आपको जाना पड़ेगा, देखो आपके भाई बुला रहे हैं। तो लक्ष्मण ने बोला, ठीक है भाभी, आप इधर खड़ी रहो, मैं आपके आजू बाजू एक लक्ष्मण रेखा खींच देता हूँ। प्लीज डू नॉट क्रॉस दिस लक्ष्मण रेखा। कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक आप लक्ष्मण रेखा के अंदर हो, पर अगर आप बाहर निकल गए तो आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। स्टे हियर ओनली। तो सीता बोली, यस यस, आई नो यू गो गो, जल्दी जाओ, राम को देखो क्या हुआ। तो इधर राम, जैसे ही उन्होंने हिरन को पकड़ा, हिरन तो जोर से बोलने लग गया, लक्ष्मण लक्ष्मण, और वो भी राम की आवाज में। फिर क्या था, लक्ष्मण भागते भागते राम जी के पास आ गए और बोले, क्या हुआ भैया। तो राम ने बोला, अरे ये तो मैजिशियन है, इसने देखो अपना अपना वेश बदल दिया है और हिरन के रूप में आया है। चलो चलो जल्दी चलते हैं, देखते हैं भाभी को तुम्हारी कुछ हुआ तो नहीं। तो वो लोग दोनों वापस आने लगे। इधर सीता बैठी वेट कर रही थी। इतने में रावण ने एक दूसरा भेष बदला और क्या बन गए, वो साधु। साधु बनके वो सीता जी के पास आए और सीता को बोला, सीता मुझे कुछ खाने को दे दो। सीता ने बोला, ओके। वो कुटिया में गई और खाना लेकर आई और रावण को दे दिया। रावण बोले, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं ले सकता, तुम ये लक्ष्मण रेखा के बाहर आओ, फिर ही मैं तुमसे ले सकता हूँ। सीता ने सोचा, अरे साधु है, क्या कर लेंगे, और उन्होंने वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर ली और जैसे ही बाहर निकली तो वहां पे कौन निकले, हा 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 करते हुए रावण आ गए और रावण ने सीता को उठाया और ले गए अपने लंका। राम और लक्ष्मण जब वापस आए तो वो ढूंढने लग गए, सीता सीता कहाँ हो, सीता सीता कहाँ हो तुम। पर सीता ने तो कोई जवाब नहीं दिया। भाभी भाभी कहाँ हो तुम, आप कहाँ हो। पर भाभी ने तो कोई जवाब नहीं दिया। फिर क्या था, दोनों बहुत सैड हो गए। उन्होंने एनिमल्स और बर्ड्स से पूछा तो बर्ड ने बताया कि यहाँ पे एक रावण आए थे और वो उनको चैरियट में बैठा के ले गए। अब राम तो बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। फिर उन्होंने पूछा कहाँ लेके गए, तो बर्ड ने बोला वो तो लंका लेके गए। तो राम और लक्ष्मण लंका की तरफ चलने लग गए। अब लंका तो बहुत दूर था। चलते 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 रास्ते में उन्हें एक कौन मिले, हनुमान मिले। हनुमान बोले, राम जी मैं तो आपका भक्त हूँ, मैं तो आपको बहुत बहुत प्यार करता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ और मैं आपको हर तरह से हेल्प करूँगा।
कैसे हेल्प करूंगा? मैं लंका जाऊंगा और लंका में सीता माँ को देखूंगा और सीता माँ को ले आऊंगा अपने संग। So Hanuman, he could fly, he could jump. So he leaped and jumped and he flew to Lanka. And Lanka में सीता माता बैठी हुई थी पेड़ के नीचे। तो उन्होंने बोला सीता माता को, मैं राम जी का भक्त हूँ और देखो ये राम जी की अंगूठी है ना, उन्होंने आपको दी है, तो ये आप अंगूठी देखो और माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप चलो मेरे संग। पर जैसे ही वो सीता माँ उठने लग गई तो वहां पे बहुत सारे डीमंस के आने लग गए। डीमंस मतलब राक्षस। All the demons came and they caught Hanuman and they took Hanuman to Ravan. Ravan said, "Who are you?" So Hanuman told him, मैं तो दूत हूँ। दूत means a messenger of Ram. आप सीता को वापस कर दो और फिनिश, नहीं तो बहुत बड़ी लड़ाई होगी और आपको राम हरा देंगे। रावण को गुस्सा आ गया। रावण और शूर्पणखा की यही तो प्रॉब्लम थी, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं सीता को वापस करूंगा, और उन्होंने ऑर्डर दिया बर्न हिज टेल। अब हनुमान तो भक्त थे राम के, उन्होंने हाथ जोड़ के राम का नाम लिया और उनकी पूंछ लंबी होती गई एंड देन रावण ऑर्डर्ड कि उनकी पूंछ को आग लगा दो। उन्होंने आग लगा दी डीमंस ने, पर हनुमान जंप करते गए एक घर से दूसरे घर पे और ऐसे करके उन्होंने लंका में आग लगा दी। सब जितने भी थे डीमंस, all the Rakshas demons, they started throwing water on fire. और यहाँ हनुमान वापस राम के पास आए और बोले वो तो नहीं वापस कर रहे सीता को। Then what happened? Then Ram and Lakshman went to Lanka and they fought a battle with Ravan. और खूब लड़ाई हुई और आखिर को रावण को हार माननी पड़ी। And he agreed that his temper was the cause of all this. And मरते मरते उन्होंने राम को सॉरी बोल दिया। राम और लक्ष्मण सीता को लेके वापस अयोध्या आ गए और जैसे ही वो अयोध्या आए, लोग खुशी के मारे दिए जलाने लगे, तालियां बजाने लगे और आकाश में अनार निकालने लग गए। खूब लाइट्स, खूब रोशनी हुई पूरे अयोध्या में और लोग बहुत बहुत खुश हो गए। इसी दिन को हम दिवाली बोलते हैं। दिवाली मीन्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, द डे Ram, Lakshman and Sita returned to Ayodhya after 14 years of exile. तो बच्चों मजा आया आपको कहानी में? ओके, अब यही कहानी आप अपने दादा दादी को सुनाना, कोई भी लैंग्वेज में सुनाना। ओके, ऑल राइट, सी यू।